Assalamu alaikum everyone. My name is Uzair and we are here today for a Friends of Figma session. Friends of Figma is a Lahore community and this community is based or is brought together for the folks to share knowledge and to discuss topics related Figma and the field of UI and UX. Product design to learn from each other and grow our network. So the purpose of this community is to work together and share knowledge and information, network together. We've done multiple meetups before this one. This was our first meetup in, I believe, 2019 in Kickstart. That was our physical in-person meetup before the COVID situation and all that stuff. And then we did another meetup that was during COVID. It was in June 2020. Our speaker was a overseas speaker. She was actually from US, yeah. And another speaker, that was our third meetup. The guru actually. This one is a fourth meetup that we did on artificial intelligence, UX design, and all that stuff. And this was our, I believe this was our last meetup that we did, roadmap for entry-level UX designers. And this is me and Ali. We both are the organizers for this Figma community. Figma, they call us community advocates. You can call us organizers or community advocates, whatever you like. Today, our session, our meetup is about design thinking. Our speaker is Zishan Chaudhry. He's an expert in UX, UI designs, web and graphic designer. I'll turn the stage over to Zishan, and I hope you guys will like it. Thank you. Thank you so much, Uzair साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम everyone. उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे. And especially thank you Uzair and Mohammad Ali Tariq साहब. आपने मुझे invite किया है active plate of the Figma to discuss about UX design, user interface design, and especially the topic of the today design thinking process with the designer community. So it's an honor for me also. So I think so we introduction to दे दिया है उज़ैर साहब ने मेरा थोड़ा सा. I have more than 14 years of professional experience in creative design industry. और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ more than 10 years हो गए मुझे freelancing भी करते हुए. I'm running my own creative design agency in Lahore, Pakistan. And I have worked, my company, I've worked with many international clients from USA, Canada, Australia, New Zealand, UK. And I am the first Pakistani who got ranked on first number in creative design category worldwide at Upwork. सही है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज भी है भाई के पास कि आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि अपवर्क जो कि दुनिया का सबसे मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर दी फ्रीलांसर्स कम्युनिटी. पूरी दुनिया से करीम आती है वहाँ पे अपना बिजनेस रन करने के लिए एज इंडिविजुअल एज ए कंपनी, राइट. तो अल्हम्दुलिल्लाह यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन कैटेगरी में मैं 2019 टू ऑनवर्ड्स अप टू 7-8 मंथ्स, राइट, मैं अपवर्क के होम पेज के ऊपर मेरा प्रोफाइल लाइक करता रहा. आई वाज द नंबर 1. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस होते क्या हैं. हमें कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करनी है या कोई मोबाइल ऐप डिजाइन करनी है, कोई वेबसाइट ऐप डिजाइन करनी है, तो हम उसमें किस तरह से डिजाइन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, हमें किन किन चीज़ों का जो है हमें ख्याल करना है. ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन. मेरा ख्याल है अब मेरी स्क्रीन आप सबको नजर आ रही होगी और मेरी आवाज भी आ रही होगी. जस्ट रीकन्फर्म इन द कमेंट सेक्शन जी बिल्कुल. ओके, बोथ आर ओके. यस, बोथ आर ओके. ओके, ग्रेट.
अच्छा जी, हम बात कर रहे थे डिजाइन थिंकिंग के ऊपर। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट डिजाइन की बात करते हैं, किसी वेबसाइट डिजाइन की बात करते हैं, मोबाइल ऐप स्पेशली, ठीक है, क्योंकि आजकल जो पूरी दुनिया ना हमारी सिमट की एक हमारी पाम डिवाइसेस के अंदर जो है ना वो सारी आ चुकी है। ठीक है, हमें कोई भी काम करना है तो टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने, और ड्यूरिंग ये हमारा जो पेंडेमिक पीरियड था फ्रॉम लास्ट 2 years, इसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि सारी चीजें जो है ना आपको ऑनलाइन पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्यूचर इज ऑनलाइन, फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी। सो इसलिए हम सबको ये चीजें जो है ना वो सीखनी पड़ेंगी। सो कमिंग टू द टॉपिक के, हमारा डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस जो है वो है क्या, कैसे स्टार्ट होता है जब हम एज ए यूआई डिजाइनर, एज ए यूएक्स डिजाइनर काम करते हैं। तो देर आर many responsibilities on the hands on the of the UX designer। ठीक है, तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है, किन प्रोसेसेस को प्रोफेशनली फॉलो करते हुए वी कैन अचीव, वी कैन डिजाइन, वी कैन सॉल्व द डिजाइन प्रॉब्लम्स, राइट। तो सबसे पहले हम हमारे ज़हन में ये जो क्वेश्चन है कि एक्चुअली डिजाइन थिंकिंग होती क्या है। ठीक है, स्पेशली यूआई यूएक्स डिजाइन। सो डिजाइन थिंकिंग एक्चुअली अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं, इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेस टू सॉल्व द डिजाइन प्रॉब्लम्स। कोई भी चीज आपने डिजाइन करनी है, लाइक वो मोबाइल ऐप है, चाहे वो वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, एनीथिंग। ठीक है, तो उसके लिए उसकी जो डिजाइन प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको हम डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एज ए यूएक्स डिजाइनर आपको डिजाइन थिंकिंग का जो प्रोसेस है, जो उसके फेजेस हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने एक सोल्यूशन निकालना होता है फॉर द कंपनी, फॉर द यूजर, ताकि एक टेंजिबल प्रोडक्ट जो है एट द एंड हम प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है जी। सो design thinking is a very powerful process to solve the problems by prioritizing the customer custom needs। ठीक है, हमारे लिए कस्टमर जो है ना, यूजर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एज ए यूएक्स डिजाइनर। एज ए यूएक्स डिजाइनर जब आप काम करते हैं, आप समझ लें कि जो कस्टमर है, जो यूजर है ना, वो आपका फ्रेंड है। आपने उसकी बहुत करीब होकर सुननी होती है। ठीक है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स, उसके जितने कंसर्न्स हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो क्या फील करता है, कैसे प्रोडक्ट को यूज करता है, क्या हर्डल्स हैं उसमें, क्या उसमें और बेहतरी हो सकती है, कहाँ से स्टार्ट करना, ये सारी चीजें जो है ना एक पूरा क्वेश्चन है। मल्टीपल सेशंस आप क्लाइंट के साथ, यूजर के साथ करते हो, तब जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो। फिर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का एक फेस आता है। फिर उन सब चीजों को आगे उन प्रोसेस, इस डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में हम यूज करते हैं, ताकि हमारा एक जो सोल्यूशन जिसकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं, जो डिजाइन सोल्यूशन हम बनाना चाह रहे हैं, वो हम एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाल सकें। सो इन सिंपल वर्ड्स, इट्स अ प्रोसेस टू सॉल्व क्रिएटिव प्रॉब्लम्स व्हिच लीड्स टू बेटर ऐप डिजाइंस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंटरनल प्रोसेसेस ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, राइट। तो ये तो होगी डेफिनेशन कि हमें पता चले कि डिजाइन थिंकिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिजाइन थिंकिंग के बाद कि डिजाइन थिंकिंग अप्रोच क्या होती है। डेफिनेशन हमें समझ आ गई कि डिजाइन थिंकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजेस है, एक प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट करते हुए हम किसी भी क्रिएटिव प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, राइट। तो डिजाइन, व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग अप्रोच? सो गुड डिजाइनर्स, जितने भी अच्छे डिजाइनर्स हैं, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स हैं, खास तौर पे यूएक्स की बात कर रही है यहाँ पे, वो क्या करते हैं कि ह्यूमन सेंटर्ड क्रिएटिव डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेंटर्ड जो प्रोसेस है डिजाइन का, वो क्या है, उससे हमें मिलता क्या है? टू बिल्ड मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव डिजाइन सॉल्यूशन। अब उस प्रोसेस में होता क्या है कि एक तरफ हमारे पास यूजर होता है। ये आपको जो पिक्चर नजर आ रही है, इसमें आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा कि एक तरफ, एक एंड पे हमारे पास डिजायरेबिलिटी होती है, वो होती है यूजर एंड पे, कि यूजर क्या चाह रहा है। ठीक है, दूसरे एंड पे होती है वायबिलिटी। वायबिलिटी में होता है बिजनेस पर्सपेक्टिव में, कि इस चीज को, इस प्रोडक्ट को बिल्ड करने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, कितने एक्सपेंसेस आएंगे, फाइनेंसेस अकाउंट हो जाते हैं, फाइनेंशियली आपने चीजों को भी देखना होता है साथ। तो कंपनी एंड पे एंड यूजर एंड पे जब तीसरी चीज है कि ये हमें, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई कि व्हाट डू पीपल वांट, नीड एंड डिजायर, राइट। तो यूजर क्या चाहता है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई। अब बिजनेस पर्सपेक्टिव में हम उसको देखें कि इसके ऊपर कितने पैसे लगेंगे, इस चीज को, पूरे प्रोसेस को, इस पूरी एक प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, और उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी में टेक्नोलॉजी की कौन सी टाइप आपने यूज करनी है। आया कि ये लेट मी एक्सप्लेन कि अगर हम, हो सकता है यूजर या क्लाइंट जो है वो आपको कहे
कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपने एक ऐसी ऐप बना के देनी है, मोबाइल ऐप जो कि सिर्फ iOS के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। तो फिर हमें iOS के फ्रेमवर्क को यूज करना पड़ेगा। अगर वो कहता है मुझे तो विंडोज पे भी चाहिए, एंड्रॉइड पे भी चाहिए, OS पे भी चाहिए, तो जितने भी हमारे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं हम उन सब के ऊपर हमें ये चाहिए। और फिर एक चीज थोड़ा सा और डेप्थ इन चलते हैं कि किस तरह की जो डिवाइसेस हैं, आप देखिए एंड्रॉइड पे भी मल्टीपल आपके पास डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत पीछे चले जाएं, 5-10 साल पीछे चले तो डिवाइसेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन आज की डिवाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, ठीक है। उसमें आपको 4K 5K तक आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, ऑडियो के काफी अच्छी चीजें हो चुकी हैं, इंटरफेसेस काफी अच्छी हो चुकी हैं, उनका हार्डवेयर काफी अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें ये भी डिफाइन करना होता है कि जो चीज, जो प्रोडक्ट, जो ऐप हम बनाने चाहेंगे, जिसको एज ए यूएक्स डिजाइनर डिजाइन करेंगे, उसके टारगेट पीपल कौन से हैं, ठीक है। वो जो लोग हैं वो कौन सी डिवाइसेस जो है ना मोस्टली यूज करेंगे, तो आपने उन डिवाइसेस को हिट करना होता है। लाइक आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लोगे। लेट्स सपोज कि मैं आपको एप्पल की एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ना आईफोन 8 से लेके आईफोन 12 तक जो यूजर हैं जिनके पास ये कैटेगरी के मोबाइल्स हैं, मैं सिर्फ उनको टारगेट करना चाहता हूँ। इससे जो नीचे आईफोन 8 से नीचे 7, 6 वाले, 4 वाले, 3GS वाले जो थे, इन सब को जो है मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। ये यूजर पॉइंट है या बिजनेस पॉइंट है। तो ये चीजें भी हमें एज ए यूएक्स डिजाइनर जानना जरूरी होती है कि हमारी जो मोबाइल ऐप है, जो वेबसाइट है, ये हम अगर बनाने जा रहे हैं तो किस डिवाइस के लिए है, वो डिवाइसेस जो हैं वो कौन लोग यूज करते हैं, और वो जो डिवाइसेस हैं उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, उसमें कितनी रैम है, वो क्या ये जो हम चीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं ये उस मोबाइल ऐप जो है ये उस डिवाइस के ऊपर फिजिबल है, रन हो सकती है अच्छे से, इसके पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, कितना डेटा इसके पीछे डेटाबेस में इन्वॉल्व होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इन शॉर्ट कि हमें डिजायरेबिलिटी, वायबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, इन तीनों को डिस्कस करने, जब हम चीजें इन तीनों को ओवरव्यू करते हैं, डेप्थ जाके स्टडी करते हैं, तो इन बिटवीन जो सेंटर में हमारे पास चीज आती है वो है इनोवेशन। वो है जो हम अभी पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि हमने एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेके आना। तो ये जो आपको एक हाईलाइटेड एरिया नजर आ रहा है ना, इनोवेशन पार्ट, ये वो सोल्यूशन है, ठीक है। इन सब रिक्वायरमेंट, डिजायरेबिलिटी, वायबिलिटी और फिजिबिलिटी को देखते हुए आपने जो दरमियान में हमारे पास एक चीज निकलती है वो है सोल्यूशन। क्योंकि हमने यूजर पर्सपेक्टिव में सारी रिक्वायरमेंट्स देख ली, उनके डिजायर देख ली, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें देखनी है, फिर टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज होंगी ये देखना है। इन सब को देखने के बाद जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट निकलता है, ठीक है, वो है जी इनोवेशन, वो है जी हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये इसलिए हमारी जो डिजाइन थिंकिंग अप्रोच है ना वो बहुत मैटर करती है अगर आप एक हैंडसम और एक टेंजिबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अच्छा, फिर बात होती है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या ये प्रोसेस जो है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, इसको फॉलो करना, इसके ऊपर काम करना इम्पोर्टेंट है भी, इससे हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते भी हैं कि नहीं मिलते, राइट। तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा बिगिन करते हैं कि व्हाई यू शुड केयर अबाउट द डिजाइन थिंकिंग। So design thinking is a human-centered approach and user-centric mindset, right, which leads to innovation. अगर मैं पिछली स्लाइड की तरफ जाऊं, इनोवेशन की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने इस प्रोसेस के रहते हुए, इस प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन अप्रोच जो है उसको अवेल करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो एट द एंड हमें रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट हमें मिलता है जी इनोवेशन। हमें जो सोल्यूशन हमने निकालना था वो सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। फिर वो जो इनोवेशन है वो हमें लीड करती है टू डिफरेंट पॉसिबल सोल्यूशन। फिर एक सोल्यूशन नहीं निकलता, मल्टीपल सोल्यूशंस निकलते हैं। फिर उन मल्टीपल सोल्यूशन से हमें पहले देखना होता है कि कौन सा सोल्यूशन ज्यादा हमारे लिए रिलायबल रहेगा, ठीक है। तो वी नीड टू अडॉप्ट दैट सोल्यूशन। मे बी आपने 2 सोल्यूशंस, 3, 4, 5 सोल्यूशंस निकाल लिए, ठीक है, लेकिन आप 4-5 हो तो आप यूज नहीं करोगे, उनमें से एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो कि सबसे टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट होगा, उससे आपने चूज करना है। तो ये भी एज ए यूएक्स डिजाइनर आपका जॉब है कि यू नीड टू फाइंड आउट द मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑन द डिजाइन स्टफ जो आप जिस पे काम कर रहे हो, देन यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द फाइनल वन कि ये सबसे बेस्ट है। और ये सारे डिसीजंस एज ए यूएक्स डिजाइनर और विद आपकी जो टीम है, ठीक है, आपके पास डेवलपर भी होगा, आपके पास आर्ट डायरेक्टर भी होगा, आपके पास डिसीजन स्टेक होल्डर्स जो डिसीजन मेकर्स हैं वो भी होंगे। तो सबके साथ एक जब कंपनी एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं तो ये आपको
एक डिस्कशन के बाद उस फाइनल सोल्यूशन की तरफ जो बेस्ट होता है उसकी तरफ जाना होता है। और फिर एट द एंड हमें क्या मिलता है, कम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपकी जो प्रोडक्ट है एट द एंड वो बहुत ही कमाल किस्म की, आला किस्म की, एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्रोडक्ट निकलती है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि ठीक है, हमें ये फॉलो करना है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, इसके थ्रू हमें अपनी क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं, बट द पॉइंट इज कि आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हमें पहले यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी रिक्वायरमेंट चाहिए, फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये भी बताता चलूँ एज एन एक्सपर्ट के, लेट्स सपोज बाज़ ऐसे होता है कि हमारे पास लेस इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हम स्टक हो जाते हैं कि यार इंफॉर्मेशन तो पूरी नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे अब काम स्टार्ट करूँ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे, एज ए एक्सपर्ट यूएक्स डिजाइनर, इट्स योर जॉब कि जहां पे आप हैं, जिस माइंड स्टेट ऑफ माइंड में है, जिस सिचुएशन में है, जो रिक्वायरमेंट्स एट द स्टिल आपके पास उस वक्त हैं, आपने वहीं से स्टार्ट लेना। ठीक है, अब वहीं से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा और वहीं से आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। आप वेट नहीं करेंगे कि मेरे पास जो है ना पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन आ जाए तो फिर मैं काम स्टार्ट करूँ। राइट, सो इस ग्राफ में, इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, यूज व्हाट यू नो। ठीक है, जो आपके पास है इंफॉर्मेशन उसी को यूज करो और अपना काम स्टार्ट कर दें एज ए यूएक्स डिजाइनर। सो थिंग्स यू आर गुड एट एंड थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, बात कर ऐसे होता है कि हम इंटरेस्ट लेते हैं कि हमें और जो है ना इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के बारे में, इस आइडिया के बारे में चाहिए। ठीक है, या जो यूजर चाह रहा है उसके बारे में हम और डिग इन करना चाहते हैं। ठीक है, तो बात कर वो चीजें उस तरह से पॉसिबल नहीं नजर आ रही होती। तो जहां जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, जो बिजनेस पर्सपेक्टिव में चीजें आपके पास अवेलेबल है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, तो उन्हीं को यूज करते हुए यू जस्ट नीड टू स्टार्ट द वर्क। ठीक है जी। अच्छा, ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस की बात। नेक्स्ट चलते हैं कि डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस जो है वो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह से ड्राइव थ्रू करता है। लाइक सो डिजाइन थिंकिंग इज अ टोटली नॉन लीनियर प्रोसेस। ठीक है जी। सो द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस फॉलोज एन ओवरऑल मेजर 3 बकेट्स। मैंने इसको ना मेजर 3 बकेट्स में कह लें कि पार्टीशन की है इसकी। ठीक है, जो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है उसके 3 मेजर हमारे पास जो है ना वो बकेट्स कह लें या पार्ट्स कह लें। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं अगर पीछे जाऊं यहाँ पे, तो डिजायरेबिलिटी यूजर एंड पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं चीजें कि यूजर क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो किन स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहता है। ठीक है, उसकी डिजायरेबिलिटी ओवरऑल क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में, उस सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है जी, तो ये वो चीज है। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपने, फिर एक्सप्लोर करना उन इंफॉर्मेशन, फिर बिजनेस पर्सपेक्टिव में भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में भी आ जाती है। तो तीनों एंड पे जब पूरी इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर ली, देन एज ए यूएक्स डिजाइनर आपने क्या करना है, इस डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस का ये हिस्सा है कि पहले चीजों को अंडरस्टैंड करें, फिर आपने एक्सप्लोर करना। ठीक है, उन चीजों को और डिग इन, एक्सप्लोर मतलब R&D करें उसके ऊपर थोड़ा और इंफॉर्मेशन गेट करने के बाद। ठीक है, एट योर एंड, लाइक एज ए यूएक्स डिजाइनर आप काम कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के फेज के बाद आपने अपने एंड पे रिसर्च करनी है उन सब टॉपिक्स के ऊपर, उन सब चीजों के ऊपर कि किस तरह से आप कस्टमर को या कंपनी को एक टेंजिबल प्रोडक्ट, एक अच्छी प्रोडक्ट, उसका सोल्यूशन निकाल के दे सकते हैं। एंड देन एट द एंड मटेरियलाइज करना, मटेरियलाइज उसको एक्चुअल फॉर्मेशन की तरफ लेके आना। मटेरियलाइज का मतलब यह है कि उसको जो सोचा था, जो डिजायरेबिलिटी थी, जो नीड्स थी कस्टमर की, जो आप चाहते थे बिजनेस पर्सपेक्टिव में, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में, उसका जो सोल्यूशन आपने निकाला उसको एक एक्चुअल फॉर्मेट में लेके आके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमें जाना। राइट, सो ये जो 3 मेजर पार्ट्स हैं, अगर ये आप अपने ज़हन में रखें तो इसी की ढेर सारी कहानी जो है ना यूजर प्रोसेस, इसकी डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस की जाएगी। इसके आगे मैंने 6 पार्ट्स और डिफरेंट बनाए इसके अंडर ही, थोड़ा और डिग इन डिटेल में करने के लिए कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में 3 मेजर फेजेस हैं। ठीक है, 3 मेजर पार्ट्स हैं, 3 मेजर बकेट्स हैं, जो आप इसको नाम दे लें। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द नीड्स कस्टमर्स। ठीक है, जो भी सारी चीजें थी अभी मैंने बयान की हैं। देन सेकंड पार्ट इज द एक्सप्लोरेशन, रिसर्च आपके एंड पे, देन उसकी एक्चुअल फॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट की, उस आइडिया।
Then within these 3 large buckets, there are more 6 detailed phases to complete the design process, starting from empathize. ठीक है, so empathy से start करते हो आप. empathy क्या होती है इसको हम आगे चल के डिटेल में जरूर देखेंगे. फिलहाल मैं इनके नाम बताता चलूँ आपको कि empathy फर्स्ट वन, देन डिफाइन है, फिर आइडिएट करना है, फिर प्रोटोटाइप बनाने हैं, फिर टेस्ट करना है उसको, फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना. ठीक है जी. So this process will repeat whenever you need to make the improvements to get the tangible product. और बाज़ बात ऐसे होता है कि जब आप पूरे ये 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, एम्पैथी इकट्ठी करते हो, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हो, फिर प्रॉब्लम डिफाइन करते हो, फिर उसके ऊपर आइडियाज लेके आते हो, सोल्यूशन लेके आते हो, फिर उसके वायर फ्रेम, स्केचेस, फिर प्रोटोटाइप्स, फिर उसकी टेस्टिंग करते हो. ठीक है, हर एंड से, अपने एंड से भी, डेवलपमेंट एंड से भी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो. बाज़ ये होता है ये सारा प्रोसेस करने के बाद भी हमें कुछ फ्लॉज, कुछ बग्स नजर आते हैं हमारी ऐप में, हमारे सोल्यूशन में, हमारे उस प्रोडक्ट में. तो हमें क्या करना है कि अगर उनको फिक्स करना है तो हमें यही प्रोसेस दोबारा फॉलो करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम दी एम्प्टी, देन डिफाइन करना है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो ये मेजर 3 पार्ट्स थे हमारे पास, अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर एंड दी मटेरियलाइजेशन. एंड इन तीनों के अंदर 6 मेजर पार्ट्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और अपना जो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है उसके अंदर रहते हुए हम एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं, एक अच्छी ऐप डिजाइन कर सकते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, उसमें 6 स्टेप्स हैं. दोबारा बता देता हूँ, एम्प्टी, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा, अब ये एक पिक्चर बड़ी अच्छी सी मैंने नीचे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं. ठीक है, और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम. ठीक है, यहाँ पे वर्ड में यूज करूंगा वेल डिफाइंड प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि हमें पता तो है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम इटसेल्फ आपने कितना उसको वेल डिफाइन करके रखा हुआ है कि कहाँ पे किस किस स्टेप में क्या क्या प्रॉब्लम्स है. ठीक है, देन आप क्या करते हो, थिंक करते हो, आइडिएट करते हो उस प्रॉब्लम के बारे में, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हो, उसके ऊपर वर्क करते हो, फिर एट द एंड एक सोल्यूशन निकालते हो. सोल्यूशन तो मल्टीपल निकलते हैं, लेकिन जो बेस्ट सोल्यूशन है यू नीड टू इम्प्लीमेंट दैट. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं. ये एक मैंने एक डायग्राम आप लोगों को शो अभी जो नजर आ रहा है, दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एम्पैथी. एम्पैथी में क्या है कि जी आपने यूजर के साथ बात करनी है, सर्वेस कंडक्ट करने हैं, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हर तरह की इंफॉर्मेशन जो निकट करनी है. फिर डिफाइन करना है दूसरे स्टेप में. दूसरे स्टेप में क्या है, डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और वेल आइडेंटिफाई करना है. वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होनी चाहिए. जब तक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं होगी आप सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन तक नहीं जा सकेंगे. ठीक है, देन नंबर 3 पे हमारे पास है आइडिएट. जब हमें प्रॉब्लम का पता चल गया तो देन हमें उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाना है. सोल्यूशन मतलब हमें डिफरेंट आइडियाज सोचने हैं, डिफरेंट एंगल से आइडियाज हमें चाहिए होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हमें चाहिए होंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ आइडियाज जो हम सोचेंगे उनमें से फिर प्योरीफाई करेंगे कि विच द आइडिया इज एक्चुअली बेस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर रहते हुए हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए. देन हमें उसके क्या करना है, स्केचेस बनाने हैं. एज ए यूएक्स डिजाइनर आप पहले रॉ स्केचेस बनाओगे पेपर पेंसिल लेके, फिर देन आप उन रॉ स्केचेस को वायर फ्रेम्स में कन्वर्ट करोगे. रॉ स्केचेस से वायर फ्रेम जो है, आप ये समझ लें कि पहले आपने, जैसे हम कोई लोगो डिजाइन करते हैं तो उसका एक स्केच बनाते हो ना, रॉ स्केचेस, फिर आप उसको थोड़ा सा पॉलिश्ड वर्जन जो है, थोड़ा सा उसका वायर फ्रेम बना के वो क्लाइंट को दिखाते हो. इसी तरह प्रोडक्ट डिजाइन में जब हम बात करते हैं, मोबाइल ऐप या वेबसाइट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले एट आवर एंड वो हमने किसी को दिखाना नहीं होता, उस वक्त मकसूद नहीं होता. आपने क्या करना है कि कॉपी पेंसिल लें और जो आपने सारी चीजें इंफॉर्मेशन गैदर की, रिसर्च की, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने उसका जो सोल्यूशन आपके माइंड में आया उसको आपने स्केच करना है कि ये चीज ऐसे ऐसे हो सकती है. फिर उस स्केच से वो आपके अपने रेफरेंस के लिए होता है. फिर आपने एक्चुअल क्या करना है कि डिजिटली उन वायर फ्रेम्स को प्रोड्यूस करना है कि एक्चुअल में ये किस तरह से चीजें आएंगी. ठीक है, उन वायर फ्रेम्स के नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने क्या करना है, प्रोटोटाइप्स बनाने हैं. तो ये 3 चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं 4th स्टेप में, कि सबसे पहले आपने ये स्केचेस, रॉ स्केचेस कॉपी पेंसिल पे, देन आप डिजिटली वायर फ्रेम्स बनाएंगे. देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल टू ड्रॉ द वायर फ्रेम्स. ठीक है, और फिर प्रोटोटाइप्स हैं. प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए भी देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन द यूएक्स इंडस्ट्री, यूएक्स डिजाइन इंडस्ट्री में.
ठीक है। जैसे कि मैं बताता चलूँ कि Adobe XD है, Figma स्पेशली जिसके प्लेटफॉर्म से हम ये बात कर रहे हैं, देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स सॉफ्टवेयर आल्सो अवेलेबल टू क्रिएट द टेंजिबल, इवन के Figma के अंदर रहते हुए आपको बड़े अच्छे बने बनाए वाई फ्रेम्स भी मिल जाते हैं एंड यू कैन क्रिएट एट योर ओन, ठीक है, फिग्मा को यूज करते हुए। देन उन्हीं वाई फ्रेम्स को आप एक्चुअल जो प्रोडक्ट बनेगी, जो नजर आएगी, ठीक है, जो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो यूजर को दिखाने के लिए या यूजर के लिए जो आप बनाना चाह रहे थे, वो कलरफुल जो एक पॉलिश्ड वर्जन है, डिजिटल वर्जन है उसका, एज ए प्रोटोटाइप उसकी फंक्शनैलिटी के साथ उसको प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। इसके बाद ये सब चीजें क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं कि यूजर से फिर फीडबैक लेते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका फीडबैक लेते हैं, फिर जो टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम जो क्रिएट कर चुके हैं फाइनली, तो क्या ये इसका जो है इसकी जो टेस्टिंग फेजेस हैं वो सब हमने करने होते हैं। मसलन उसकी यूजेबिलिटी टेस्टिंग करनी है, उसकी एज ए यूजर जो चीज हमने प्रोडक्ट बनाई है वो आपने बना तो दी, लेकिन यूजर को भी जो उसकी नीड्स थी वो पूरी हो रही हैं, जो उसकी कस्टम नीड्स थी, जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसकी डिजायर थी, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो गोल्स थे आपके वो भी पूरे हो रहे हैं उसमें कि नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे टेस्टिंग फेज में हमें देखनी पड़ती है। देन आफ्टर एट द एंड फाइनली जब आप टेस्टिंग फेज से भी निकल जाते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली एट द डिजाइन एंड एट द डेवलपमेंट एंड एट द टेस्टिंग एंड, देन आप उसको क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि उसको लाइव कर देते हो, पब्लिश कर देते हो उस प्रोडक्ट को फॉर दी यूजेज, आपके जो टारगेट मार्केट है उसके लिए, उन लोगों के लिए आप उसको यूजेबल बना देते हो, उनकी एक्सेस में दे देते हो, ठीक है जी। तो ये पूरा प्रोसेस है, इंतहाई आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टोटल मेजर थ्री हमारे पास पार्ट्स थे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें चीजों की जो है ना रिक्वायरमेंट वो पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम डिफाइन करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि उसका जो सोल्यूशन है उसकी तरफ जाना है, ठीक है, आइडिएशन की तरफ जाना है, फिर हमने स्केचेस बनाने हैं, फिर वायर फ्रेम्स बनाने हैं, फिर हमें उसके जो प्रोटोकॉल फंक्शनल प्रोटोकॉल्स हैं उनकी तरफ जाना है। पहले सिंपल स्टैटिक प्रोटोटाइप्स बनेंगे, फिर आपने उन्हीं प्रोटोटाइप्स को फंक्शनल करना होता है। एक्चुअली जब आप कोई भी वेब ऐप बनाते हो तो जब स्टैटिक आप प्रोटोटाइप्स बना लेते हो, देन आपने क्लाइंट को या अपने एंड पे जो आपकी टीम आपके साथ काम कर रही होती है, तो आपने एक एक चीज को उन फंक्शन वाइज भी टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप्स को फंक्शनल करके हम देखते हैं, जो कि एक्चुअली एक ऑनलाइन लिंक हम प्रोड्यूस कर लेते हैं थ्रू आवर सॉफ्टवेयर, थ्रू फिग्मा, थ्रू अदर डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं उनकी मदद से। देन वो हम अपने यूजर को या क्लाइंट को या मल्टीपल यूजर जिनको एज ए यूजर, हम वो यूजर तो नहीं होते लेकिन हम एज ए टेस्टिंग फेज में उसको डिफरेंट लोगों को दिखा के उनके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और देयर आर मेनी अदर कंपनीज आल्सो अवेलेबल प्रोफेशनली जो कि आपको टेस्टिंग में आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। दे हैव द प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स, ठीक है, वहां पे आपकी प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से आप टेस्ट कर सकते हैं। देयर आर मेनी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस अवेलेबल फॉर द टेस्टिंग ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन एप्स एंड वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था। मेन जो पकड़ थी हमारी अंडरस्टैंड की, अंडरस्टैंड में क्या करना है हमने, एम्पैथी को समझना है, रिसर्च करनी है, फिर डिफाइन प्रॉब्लम करनी है कि प्रॉब्लम जो है वो भी वेल डिफाइन होनी चाहिए। जब तक प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं होगी आप अच्छा सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो ये दो फेजेस जो है अंडरस्टैंड के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर एक्सप्लोर के अंदर क्या आता है, आइडिएशन। यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा और R&D करोगे, डिफरेंट आइडियाज के ऊपर काम करोगे, सोचोगे, बनाओगे, मटाओगे, फिर बनाओगे। तो यू वर्क ऑन दी मल्टीपल आइडियाज, फिर उन आइडियाज के अंदर से फिर आप एक फाइनल करते हो, उस फाइनल आइडिया के ऊपर फिर आप स्केचेस बनाओगे, फिर वायर फ्रेम, फिर प्रोटोटाइप्स बनाओगे। देन एट द एंड दो हमारे पास जो फेज है मटेरियलाइजेशन में, वो है जी टेस्टिंग फेज है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन लॉन्चिंग है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब इन्हीं को हम थोड़ा फर्दर डिटेल में सीखते हैं कि एम्पैथी क्या है, डिफाइन प्रॉब्लम करना ये क्या चीज है, आइडिएशन क्या है, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, वायर फ्रेम्स क्या होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं, ठीक है। फिर टेस्टिंग फेज में क्या होता है और इम्प्लीमेंटेशन फेज पे क्या होता है। तो चलते हैं एम्पैथी की तरफ। तो एम्पैथी जो है, एम्पैथी इट्स ऑल अबाउट के ये पिक्चर आपको बड़े अच्छे से एक मैसेज कन्वे कर रही होगी, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं कि दो पर्सन है, दोनों को एक समझ लें कि तीर जो है ना उनकी बैक पे लगा, ठीक है, ये देख रहे हैं आप।
So statement is I know exactly how you feel. ठीक है जी. So empathy centric UX design, जब एज ए UX डिजाइनर आप काम कर रहे होते हैं, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एम्पैथी मेन जो फर्स्ट स्टेप था हमारा कि जो यूजर फील करता है वो ही आप फील करते हैं एज ए UX डिजाइनर. ठीक है. सो यू आर दी बेस्ट फ्रेंड ऑफ द यूजर. आपकी जितनी भी टीम होती है उस प्रोडक्ट को बनाने में, यू आर दी एग्जैक्टली द राइट पर्सन जो कि यूजर का फ्रेंड होता है. ठीक है. उसकी जो कस्टम नीड्स हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो डिजायरेबिलिटी है, सारी चीजें जो है ना वो वैसे ही आपने एक्सपेक्ट करनी है यूजर से. ऐसे ही आपने उससे सारी इंफॉर्मेशन लेनी है थ्रू क्वेश्चनियर, थ्रू डिफरेंट सर्वेस, लाइक डिफरेंट मीटिंग्स. ठीक है. जो वो कहता है आपने बिल्कुल वैसे ही उस चीज को ऑब्जर्व करना, वैसे ही फील करना है. ठीक है. सो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस इज एम्पैथी. सो एम्पैथी क्या है? एम्पैथी टू फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द यूजर. ठीक है. वही जो बात हम पीछे करके आ रहे थे कि यूजर एंड पे हमें उसकी डिजायरेबिलिटी देखनी है, उसकी कस्टम नीड्स देखनी है. So simply understand the user perspective and about the brand. हमें brand मतलब business point of view से भी देखना है. So get to know about the user behaviors and user needs by conducting interviews. हमें क्या करना है कि यूजर बिहेवियर को स्टडी करना है, यूजर रिक्वायरमेंट्स को देखना है. किस तरह से देखना है? इंटरव्यूज करके देखना है, कॉन्टेक्स्ट इंक्वायरीज क्रिएट करके देखना है, सर्वेस क्रिएट करके हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. क्वेश्चन यार हम जैसे कि जो लोग PhD MPhil पे कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, या बैचलर लेवल पे भी ये चीजें होती हैं. ठीक है. जब आप अभी डिग्री कर रहे होते हो, क्या क्या आप अपनी आइडिया के ऊपर एक क्वेश्चन तैयार करते हो, फिर आप डिफरेंट स्टूडेंट्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो पेपर, या डिफरेंट लोगों को, उससे उनसे इंफॉर्मेशन, एक आम यूजर क्या सोचता है उस प्रोडक्ट के, उस आइडिया के बारे में, सोल्यूशन के बारे में, वो आप एक्सपेक्ट करते हो. तो ये वो चीज है. ठीक है. देन आपकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है. ठीक है. वो आप देखते हो. फिर फीचर मैट्रिक्स, जो उस प्रोडक्ट के फीचर्स आप कर रहे हो, बना रहे हो, उसको देखते हो. फिर कंपटीटर, उस आइडिया के अगेंस्ट जो ऑलरेडी कंपटीटर्स हैं मार्केट में, उनका एनालिसिस करते हो. ठीक है. एज ए UX डिजाइनर. सो द रूल ऑफ थंब एट दिस स्टेज इज टू अवॉइड द अजम्पशंस. हमने ऑब्जर्वेशन की बात की है, ऑब्जर्वेशन जरूर करनी है, लेकिन अजम्पशंस से दूर रहना है. अजम्पशंस क्या है कि आप खुद ही अपने एंड पे एज ए UX डिजाइनर सोच लें कि यूजर को ये चाहिए होगा, या यूजर ये चाहता होगा. ठीक है. या इस तरह का चीज जो है ये यूजर के लिए एक्सेप्टेबल होगी. तो ये सारी assumptions हैं आपके अपने एंड पे हैं, यूजर एंड पे नहीं है. तो जब भी आप assumptions बनाएंगे आपकी प्रोडक्ट टोटली फेल है, ये मैं आपको बता दूं. ठीक है. आप एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे, एक अच्छा आइडिया क्रिएट नहीं कर पाएंगे, अच्छा सोल्यूशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे फॉर द यूजर, फॉर द बिजनेस मॉडल, जो भी बिजनेस स्टेक होल्डर्स होते हैं इन्वॉल्व. सो regarding the user needs and your focus should be on the information side. जो कि information यहाँ पे हम inquiries के through, surveys के through निकाल रहे थे, इस information की base के ऊपर सारी चीजें आपने करनी है, ना कि assumptions की base पे. ठीक है. Being a UX designer, UI designer, ये बहुत important role है यहाँ पे assumptions से दूर रहना. So from the interviews and surveys, it can be difficult to avoid assumptions. बात का हम सोच लेते हैं, ठीक है, और assumptions बना लेते हैं. इनको अवॉइड करना जो है वो थोड़ा सा इतना आसान भी नहीं है. ठीक है. इट्स अ ह्यूमन सिस्टम, एक ह्यूमन साइकी है. वही हमारा जो सिस्टम है एज ए ह्यूमन वैसे ही काम करता है. हम assumptions भी बनाते हैं, assumptions की बेस पे डिसीजन भी ले लेते हैं, बट कभी भी assumptions की बेस पे प्रोडक्ट्स नहीं बनती. प्रोडक्ट्स जो है रियल टाइम पे आपकी इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन के ऊपर बनती है. ठीक है. सो but you must do this for a good UX design, as pre-assumptions can lead to useless products. तो जो आपकी pre-assumptions आप कर बैठे हो, या आपने वो अपनी रिक्वायरमेंट्स में खुद से ही डाल ली, ठीक है, वो आपको एक यूजलेस, एक फेल प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएगी. तो ये होती है जी एम्पैथी. ठीक है. आगे चलते हैं. एक वर्ड है सिंपैथी. ठीक है. तो मैं जब ये प्रेजेंटेशन बना रहा था तो आई वुड लव कि मैं आपको यहाँ पे ये चीज भी एक्सप्लेन करूं. एक डायग्राम मैंने बनाया जिसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हो कि सिंपैथी और एम्पैथी ये दोनों बड़े मिले जुले वर्ड्स लगते हैं हमें, तो हमें बाज़ का कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअली ये दोनों हैं क्या. ठीक है. बट इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना है. एक वर्ड है पिटी. ठीक है जी. पिटी मीन्स आई एम सॉरी फॉर यू. ठीक है. कि किसी की
ऐसी हालत, अगर मैं आसान ज़बान में समझाऊं आपको, किसी की बिजार हालत देख के आप कहते हो यार आई फील सॉरी फॉर यू, ठीक है। अच्छा, फिर आती है सिंपैथी। सिंपैथी होती है आई फील फॉर यू, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर यू, पिटी। सिंपैथी क्या है? आई फील फॉर यू। बट एम्पैथी क्या है? मेजर डिफरेंस, आई फील विद यू, ठीक है। सिंपैथी और एम्पैथी में मेजर डिफरेंस, इनका जो कंपैरिजन है ये भी हमें समझना है, ठीक है। आप यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूजर फील करता है, यू फील विद द यूजर, नॉट फॉर यूजर। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे सिंपैथी क्या है? आई फील फॉर यू, ठीक है। जो उसकी जो वो डिजायरेबिलिटी है आप वो भी फील करो, जैसा यार ये यूजर की डिजायरेबिलिटी प्रोडक्ट के रिलेटेड ये है, तो मैं उसके रिलेटेड जो है ना मेरी जो सिंपैथी है या मैं उसके बारे में ये फील कर रहा हूँ। बट एम्पैथी इज समथिंग एल्स। एम्पैथी क्या है कि व्हाट क्लाइंट्स व्हाट यूजर फील, यू फील विद द, यू फील दैट थिंग विद द यूजर, ठीक है, ऑन द सेम पेज। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। और फिर है कंपैशन। कंपैशन में क्या है? आई एम मूव्ड बाय यू, ठीक है। जो कंपैशन में होता है कि क्लाइंट ने जो कह दिया आप उसके उसी पैटर्न के ऊपर उसके ऊपर जो है ना मूव कर देते हो, काम करते हो। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना इस चीज को, ये जरा ध्यान रख लेना आपने। वी आर टॉकिंग, जो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है उसमें हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, सिंपैथी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। देन है जी डिफाइन करना है, मतलब कि प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करना है। जब तक हम प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हिच यू गेट फ्रॉम द क्लाइंट, फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द बिजनेस मॉडल, बिजनेस पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, तो ये जब तक आप उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं निकाल लेते, तब तक आप वेल डिफाइंड सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। सो सिंपली यू नीड टू वेल डिफाइन द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल by getting detailed study about the user empathy map, ठीक है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, this is the user empathy map, समझ रहे मेरी बात? तो अच्छा, यूजर परसोना आपको स्टडी करना पड़ेगा, स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। पहले क्लाइंट ने हमें ये कहा, यूजर ने ये कहा, उसकी ये नीड है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप, तो पूरा एक मैप बनेगा उसका, रोड मैप, उसको स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ेगा आपको। फिर यूजर जर्नी मैप आपको बनाना है, यूजर फ्लो बनाना है, साइट मैप बनाना है, पीओवी स्टेटमेंट गेट करनी है, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम यूजर की बात कर रहे हैं, जब हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी पॉइंट जो है ना वो हमें निकालना है। फिर एचएमडब्ल्यू पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो हमें निकालनी है। वो क्या है? हाउ माइट वी गेट दैट, या क्या हमें चाहिए, ठीक है, या क्या आप इस एट द एंड क्या जो है ना वी विल गेट दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो डेफिनेशन, डिफाइन, प्रॉब्लम डिफाइन करने की जो स्टेजेस हैं उसमें हमारी आएंगे, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है जी आइडिएशन। आइडिएशन में क्या करना है? उन्हीं इंफॉर्मेशन की बेस पे जो कि हमने यूजर एंड पे गेट की, जो कि हमने बिजनेस एंड पे की, जो टेक्नोलॉजी एंड पे की, हमें क्या करना है? एट जो सेंटर पॉइंट पे हमने एक इनोवेशन का, आपको याद होगा एक डायग्राम था जो पिन पॉइंट कर रहा था कि इनोवेशन इन तीनों के इंटरसेक्शन से जो चीज निकलेगी, इन चीजों के वो है जी इनोवेशन, वो है जी सोल्यूशन, वो है क्रिएटिव डिजाइन सोल्यूशन जो आप निकाल रहे हैं। तो ये है जी आइडिएशन, कि आप मल्टीपल आइडियाज के ऊपर काम करते हो, मल्टीपल आइडियाज जनरेट करते हो। सो इसको गो थ्रू करते हैं, सिंपली जनरेटिंग डिफरेंट बेस्ट आइडियाज फॉर डिजाइन सोल्यूशन बाय गेटिंग डिटेल्ड इनसाइट्स ऑफ यूजर फ्लो। किसकी बेस पे निकालना है? यूजर फ्लो की बेस पे, साइट मैप पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपने जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको लेके, विद द सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर यूजर्स एंड क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन माइंड। ये वही बात है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो आपके ब्रेन में अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। सो इट इज द टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन पोटेंशियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो ये फेज है या जो ये टाइम है, ये एक्चुअल टाइम है टू क्रिएट द गुड सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, उसमें भी ना 5 स्टेप है आइडिएशन को क्रिएट करने के लिए। हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यूजर नीड्स उसको जहन में रखना है, वेल डिफाइन जो प्रॉब्लम है, फिर उसको, फिर जो मल्टीपल फंक्शनल टीम आपके साथ इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर है, क्लाइंट है, बिजनेस है, डेवलपमेंट की टीम है, आर्ट डायरेक्टर है, डिसीजन मेकर्स हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर है, यूएक्स डिजाइनर है, विजुअल डिजाइनर, ये बहुत बड़ी टीम होती है जब हम एक बड़ी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो वो स्टेक होल्डर जो है उनके साथ आपकी मीटिंग्स हैं, उनसे आप बहुत सारी चीजें जो है डिसीजंस लोगे,
उनसे चीजें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करोगे। देन थर्ड नंबर पे है ले डाउन द रूल्स, के कुछ रूल्स आप बनाओगे आपके, ये चीजें हमें बाईपास करनी है, ये नहीं करनी, ठीक है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उस प्रोडक्ट के मुतालिक बनेगी। फिर क्या करना है, जितने भी आइडियाज आप जनरेट करोगे उनको सेपरेट रखना है कि ये आइडिया जो है इसके ये बेनिफिट्स हैं, इस आइडिया के साथ हमें ये सोल्यूशन मिल रहा है, इस आइडिया के साथ हमें ये चीजें मिल रही हैं, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए बाद में और चीजों को एक जो बेस्ट सोल्यूशन है वो पिक कर पाए, ठीक है। देन एंड यू थिंक अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट आइडियाज, जो आप आइडियाज एट एंड क्रिएट कर लें, देन फिर वो आपने अपनी टीम को कन्वे भी करने हैं, उनको एज ए being a UX designer, good designer, आपको एक स्टोरी टेलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। You should be a good storyteller to communicate your ideas to the client, to the business owners, जो भी आपके स्टेक होल्डर उस वक्त उस प्रोडक्ट के साथ अटैच है, ठीक है जी। देन आफ्टर दैट हमारा है जी आइडिया के बाद प्रोटोटाइप, ठीक है। प्रोटोटाइप सेक्शन में मैंने बोला था कि पहले आपने रॉ स्केचेस बनाने हैं फॉर योर रेफरेंसेस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। देन आफ्टर दैट यू नीड टू क्रिएट द वाई फ्रेम्स, ठीक है जी। वाई फ्रेम्स के बाद आपने उनके स्टैटिक प्रोटोटाइप्स बनाने हैं उन्हीं डिजाइन्स के, और देन फंक्शनल प्रोटोटाइप्स बनाने हैं, ठीक है जी। So simply turn your ideas into working functional designs by doing sketches, right? Wireframes, low fidelity and high fidelity prototypes. यहाँ पे प्रोटोटाइप्स की दो किस्में हैं, एक लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स हैं और एक हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स हैं। इनमें क्या डिफरेंस है मैं आपकी इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल फेज aimed at finding the best possible solution. तो ये जो लेफ्ट साइड पे पेंसिल के साथ जो ये आपको मोबाइल की ऐप की एक स्क्रीन नजर आ रही है, दिस इज द लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, ठीक है। इससे पहले भी एक फेज होता है जिसका मैं बात कर रहा था, स्केचेस, वो आप कॉपी पेंसिल पे अपने आइडिया, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एज ए यूएक्स डिजाइनर आप बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसी को आप क्या करते हो कि लो फिडेलिटी वाइड फ्रेम में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप में। देन उसी चीज को, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास एक पिक्चर है, एक डिजाइन है, ठीक है। इसी को जब आप रियल कन्वर्जन में लेके जाओगे, रियल डिजाइन में लेके जाओगे, and according to the based on the understanding of the user and the business and the technology, तो आपके पास एक फाइनल जो डिजाइन या सोल्यूशन जो आपके लिए निकलेगा उस प्रोडक्ट के लिए, उस आइडिया के लिए, वो ये होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स और इसको हम बोलते हैं लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, ठीक है जी। प्रोटोटाइप्स हो गए। देन एट दैट हमारे पास है जी टेस्ट। अब सब कुछ तो बना लिया, सोल्यूशन भी बन गया, हमने लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स बनाए, वाई फ्रेम्स बनाए, फिर हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स बना दिए, फिर उनके फंक्शनल प्रोटोटाइप्स बना दिए, ठीक है, क्लिकेबल फंक्शनल, ताकि हम किस चीज पे क्लिक करेंगे, किस बटन पे क्लिक करेंगे, क्या ऑप्शन आएगा, कौन सी स्क्रीन डिस्प्ले होगी, उस स्क्रीन पे कौन सी इंफॉर्मेशन हम यूजर को दिखाएंगे, उसके बाद यूजर कहाँ पे क्लिक करेगा, देन नेक्स्ट क्या है। तो ये सारी चीजें हमने फंक्शनल क्लाइंट को और एज ए यूजर, एज ए यूएक्स डिजाइनर अपनी टीम को भी कन्वे करनी होती है, ताकि सब लोग इसको टेस्टिंग फेज में अच्छी तरह से, हर तरह से टेस्ट कर सकें, ताकि जब हम इसको पब्लिश करें, लाइव करें इस प्रोडक्ट को, ठीक है, यूजर के लिए उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करते हैं, तो तब हमें कोई बग, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसी एरर ना आए उस प्रोडक्ट में, जिससे जो है ना एक अनप्रोफेशनल जो मैसेज है जो कि क्लाइंट को जाएगा, जो यूजर को जाएगा, ये कि इतना काम करने के बाद भी प्रोडक्ट में एरर्स आ रहे हैं। सो simply test prototypes and evaluate the deliverable designs and functionalities by doing usability testing, ठीक है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो चीज, जो डिजाइन आपने प्रोड्यूस किया है, वो यूजर एंड पे कैसा है, इट इज इजी टू नेविगेट फॉर द यूजर टू फाइंड आउट द थिंग्स जो आप प्रोडक्ट बिल्ड कर चुके हैं, जो मोबाइल ऐप बना चुके हैं, क्या आप उस प्रोडक्ट को यूजर जो है उसके अंदर जो मवाद, जो सब्जेक्ट, जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट, जो इंफॉर्मेशन उस क्लाइंट के लिए, उस यूजर के लिए आपने रखी हैं, या जो यूजर उस प्रोडक्ट से एट द एंड गेट करेगा, क्या वो इजी टू नेविगेट है, इजी टू रीच है, ठीक है। कहीं पे टाइपोग्राफी के मसले तो नहीं है, कलर्स के मसले तो नहीं है, ये तो नहीं हो रहा कि क्लाइंट जो है ना आपकी फर्स्ट स्क्रीन पे आया, दूसरी स्क्रीन पे आया तो लीव कर गया, छोड़ गया, बिकॉज ऑफ दी बैड कलर सिलेक्शन, बैड टाइपोग्राफी, बैड डिजाइन, बैड आर्किटेक्चर एज ए यूएक्स डिजाइनर जो आपने बनाया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। फिर ए बी टेस्टिंग है। ए बी टेस्टिंग क्या होती है, ये भी बताता चलूं कि हम मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैसे हमने मल्टीपल आइडियाज बनाए थे, उस समय हमने क्या किया था, बेस्ट एक सोल्यूशन निकाला था। तो क्या करते हैं हम, बेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशंस होते हैं, 1 2 3, जाहिर बात है ए बी टेस्टिंग तब होगी जब हम एक से ज्यादा सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं।
तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशंस हैं, हम उन सब सॉल्यूशंस को डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, फिर हम उनको टेस्ट करते हैं कि विच सॉल्यूशन इज द बेस्ट। तो ये होती है ए बी टेस्टिंग, क्या इस सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली ये सॉल्यूशन अच्छा है या ये अच्छा है, ठीक है जी। फिर मल्टी वेरिएट टेस्टिंग होती है। मल्टी वेरिएट टेस्टिंग क्या है कि आप एज ए आर्ट डायरेक्टर बंदा जो है आपकी ऐप का टेस्ट करेगा, एज ए यूजर टेस्ट होगा, एज ए टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो टेस्ट करेंगे, फिर हार्डवेयर लेवल पे कंपैटिबिलिटी के टेस्ट हैं, ठीक है, फिर यूआई विजुअल्स के टेस्ट हैं, फिर यूजर एक्सपीरियंस के जो टेस्ट है, फिर यूजेबिलिटी के टेस्ट हैं। हर एंगल से जो टेस्ट है ना उसको मल्टी वेरिएंट टेस्टिंग बोलते हैं। सो यू शुड नाउ हैव अ विनिंग प्रोटोटाइप एट द एंड, ठीक है। अगर वो सारे टेस्ट पास हो चुके हैं तो एट द एंड क्या होगा कि विनिंग प्रोडक्ट या मोबाइल ऐप या वेबसाइट व्हाटएवर you have designed that वो आपके पास होगी। You can test with your users, ठीक है। This can be a simple paper or more polished clickable version, ठीक है जी। जैसे मैं बात कर रहा था ना, वी के प्रोटोटाइप जो हैं वो दो किस्म के आपने, एक लो फिडिलिटी है, एक हाई फिडिलिटी है। जब हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप आप बना लेंगे तो उसके भी दो पार्ट्स हैं, एक है स्टैटिक, एक है फंक्शनल, ठीक है। तो जो फंक्शनल है ये उसकी बात हो रही है, और जो पेपर की बात हो रही है सिंपल पेपर पे जो स्टैटिक आपके डिजाइन है वो प्रिंट आउट करके क्लाइंट से, यूजर से, अपनी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। बट जो फंक्शनल होंगे वो हमारे क्लिकेबल वर्जन ऑफ द प्रोटोटाइप्स होंगे, ठीक है जी। क्या किया था हमने, आइडिया, ठीक है, प्रोटोटाइप बनाए, फिर टेस्टिंग की, कुछ गलत हुआ, कुछ एरर आए, कुछ मसले मसाइल दोबारा आए, फिर हमने आइडिया सोचा, फिर सॉल्यूशन निकाला, फिर प्रोटोटाइप्स बनाए, फिर टेस्ट किया। तो ये एक पूरा साइकिल है जो कि बार बार एज ए यूएक्स डिजाइनर आप फेस करते हो, या इसको आपने फॉलो करना होता है। एट द एंड क्या है जी, इम्प्लीमेंटेशन, लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज सिंपली कन्वर्ट योर प्रोटोटाइप्स इनटू एक्चुअल फंक्शनल प्रोडक्ट एंड लॉन्च इट। वो क्या है कि वो जो चीज आपने सॉल्यूशन बनाया, जो प्रोडक्ट एट द एंड आपने क्रिएट की, उसको आपने एट द एंड यूजर के हैंड ओवर कर दिया, उस कंपनी के हैंड ओवर कर दिया, उस क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया, व्हाटएवर, ठीक है। उसका जो पर्पस है वो विद इन हाउस है या वो आम पब्लिक के लिए है, व्हाटएवर द स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट, या मोबाइल ऐप, वेबसाइट जो भी था, या सॉफ्टवेयर इंटरफेस किसी चीज का आपने बनाया, तो ये सारी चीजें एट द एंड क्या करते हो, आप लॉन्च कर देते हो जिस मकसद के लिए भी आपने बनाई थी, ठीक है जी। तो एक ये चीज होगी, हमने प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दी, जिसमें ये एक मैंने वेबसाइट का छोटा सा एक इंटरफेस जो कि अनकन्वेंशनल इंफॉर्मेशन के बगैर आपको कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, बट इंटरफेस आपको अच्छे से समझा रहा होगा। नेक्स्ट है कि हमने एक मोबाइल ऐप डिजाइन की थी कि यहाँ पे ये फर्स्ट स्क्रीन है ऐप की, क्लिक करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आएगी। तो एक्चुअल प्रोडक्ट आपके सामने फंक्शनल लाइव होगी, पब्लिश होगी, ठीक है जी। तो ये था जी डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, जिसको बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव और शॉर्ट सा और ब्रीफ सा मैंने रख के, जो उसके मेजर 6 पॉइंट्स थे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा समरी बताता चलूं कि डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस इसके इतने अच्छा, ये कुछ लोगों के ज़हन में है कि शायद ये कोई नई चीज है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। ये 1970s से पहले की डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस डिफाइन, इससे भी पहले के, ठीक है। तो बहुत पुराना है ये कोई नई चीज नहीं है कि डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस जो है ना वो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर इंटरफेस डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नई चीज आज की जिद्दत है, नहीं, ये बहुत पुराना है। इस सिस्टम के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है ना डिजाइन होती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के दौर में अभी हम मतलब के इंटरनेट की दुनिया में है, तो हमें मोबाइल ऐप्स और ये वेबसाइट्स और सारी चीज यहाँ पे इन चीजों को यूज करते हैं। यही फेजेस, यही स्टेप्स अदर प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए भी यही साइकिल है, ठीक है। अगर आपने एक अच्छी अम्ब्रेला, एक अच्छा चेयर, एक अच्छी सोफा, बेड, मतलब कुछ भी, एनी प्रोडक्ट, आप कंप्यूटर टेबल, कुछ भी अगर आपने डिजाइन करना है तो उसके भी फेजेस यही होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा चीजों में, लेकिन ऑलमोस्ट यही चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या था, हमने सीखा कि व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग, ठीक है, क्यों जरूरी है, इसकी क्यों हमें इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हमें इसके अंदर मेजर 3 जो जंक्स थे, इसके जो पकड़्स थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए। फिर उसके अंदर जो 6 हमारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे, एक्चुअल जहां पे डिग इन करके हमने काम करना है, वो उनको हमने स्टेप बाय स्टेप, 1 पे 1 सारा डिस्कस किया, ठीक है। और एट द एंड हमें एक सॉलिड, एक टेंजिबल, एक वर्केबल, एक यूजफुल प्रोडक्ट जो है, एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट जो है वो आपने क्रिएट किया, ठीक है, विद द हेल्प, विद एज ए यूएक्स डिजाइनर एंड विद द हेल्प ऑफ द योर टीम। वो डेवलपर्स थे, वो स्टेक होल्डर्स थे, वो यूजर्स थे, वो क्रिएटिव डायरेक्टर थे, आपके जो आर्ट डायरेक्टर थे वो थे, ठीक है, विजुअल डिजाइनर्स थे, इंटरेक्शन डिजाइनर, ये सारी पूरी टीम जो है, जो भी आप इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी आपके साथ, एट द एंड आप यू आर द सक्सेसफुल
टीम जिन्होंने एक अच्छी प्रोडक्ट जो है ना वो बनाई. So this is the whole process के how you can work as a UX designer following the design thinking process to make tangible products to useful products to the best products to create. ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैंने तो कोशिश किया कि आपको बड़े अच्छे और आसान अल्फाज में सारी चीजें कन्वे की जाएं. अगर यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है अबाउट द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस तो यू कैन आस्क. जी बिल्कुल, मैंने अभी Q&A सेक्शन भी ओपन कर दिया है, तो ऑडियंस में से अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो वहाँ पे कमेंट कर सकता है. एंड थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली अमेजिंग सेशन. आपने बहुत डिटेल में एक चीज को समझाया, मतलब अगर कोई न्यूबी भी है तो उसको मेरे ख्याल में इजीली समझ आ गया होगा. एग्जैक्टली मेरी कोशिश यही थी कि हम थोड़ा सा इस तरह से इसको मॉडल या इस तरह से कम्प्रीहेंसिवली मैं कन्वे कर दूं आपको कि जो लोग मे बी न्यू भी हैं या जिन्होंने सिर्फ वर्ड सुना है कि यूएक्स डिजाइनर क्या होता है, मे बी दे आर ग्राफिक डिजाइनर्स एंड वांट टू मूव टू वर्क एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर, तो उनके लिए भी चीजें उतनी ही आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो. बिल्कुल. अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैं मतलब इसको देख रहा था स्टार्ट से, तो स्टार्ट में आपने जो बात की थी पहली स्लाइड पे, बिजनेस, इनोवेशन और यूजर एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमें प्रायोरिटाइज किसको करना चाहिए? यूजर को हमें मतलब देखें कि यूजर को हम पहले नंबर पे रखें, या टेक्नोलॉजी को हमने देखना है जी आज ये नई अपडेट आ रही है इसको हमने ज़हन में रखना है पहले नंबर पे, या बिजनेस को हमें देखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने, अगर आपने गौर किया तो मैंने ना अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में एक चीज के ऊपर फोकस किया है कि यू आर द फ्रेंड ऑफ यूजर एज ए यूएक्स डिजाइनर. तो आपके लिए जो सबसे आप समझ लें कि एक वर्ड राइट वर्ड है यहाँ पे, देखिए कि यूजर जो है ना वो आपके लिए इस टाइम गॉड है. आपने उसकी सुननी है वो क्या कह रहा है, उसकी डिजायरेबिलिटी क्या है, उसकी नीड्स क्या है, क्या वो चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसा वो फील करना चाहता है उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए. तो ये सारी चीजें जो एज ए यूएक्स डिजाइनर आपकी प्रायोरिटी पे यूजर है. जब आप वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सारी, तो देन आपने फिर एक दूसरा पहलू है उसकी तरफ आना है, वो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू है. तो उस यूजर को सारी चीजें कि यूजर क्या चाहता है समझने के बाद हमने बिजनेस को भी देखना है, फिर टेक्नोलॉजी कौन सी हमने यूज करनी है, ये सारी चीजें. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर. Got it. Thank you, sir. We have our 12 attendees here, and no one is, I think, मेरे ख्याल में कोई खास पूछने के लिए अभी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके विजिबिलिटी और वो एम्पैथी के साथ सिंपैथी को भी थोड़ा अच्छा मतलब डिफाइन कर दिया. We can अली भाई we can make multiple sessions. मतलब कि हम ये जो 6 स्टेप्स हैं, जैसे कि 3 अभी आपको नजर आ रही है ना, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटीज क्या है. अगर हम आगे और मल्टीपल सेशंस करना चाहें तो हम कर सकते हैं. मतलब एक एक पार्ट को लेके वी कैन डिग इन दैट और डिटेल में जा सकते हैं. तो इंशाल्लाह हमारी जो डिजाइनर कम्युनिटी है, इट्स आवर जॉब कि ये मैं समझता हूँ कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ए गुरु, बीइंग एक्सपर्ट, कि हम जो न्यूबीज हैं या जो लोग अभी भी अपनी स्किल्स को थोड़ा एनहांस करना चाहते हैं, उनको हम डिटेल में इंशाल्लाह हम मल्टीपल सेशंस करके इनको सिखाएंगे. बिल्कुल, ताकि एक जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान में स्पेशली, वो इस काबिल हो जाए कि जब वो इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ काम करें, एज ए फ्रीलांसर काम करें, एज ए टीम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो दे कैन डिजाइन द ऑसम सॉल्यूशंस. बिल्कुल इंशाल्लाह सर. अच्छा सर, इसको फिर हम अभी कंक्लूड करेंगे. आप एंड पे कोई खास मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज तो यही है कि इट्स अ वेरी, मैं इसको समझता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है एट द बिहाफ ऑफ फिग्मा एंड अली भाई और जो जैद भाई, आप दोनों ने ये एक इनिशिएटिव क्रिएट किया, दिस इज वेरी, मतलब कि इट्स ब्लो माय माइंड कि यार कोई इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी हैं हमारे जो कि एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, कम्युनिटी को पे बैक करना चाहते हैं एक्चुअली. ठीक है, सो द आइडिया इज कि वी जस्ट वांट टू पे बैक द कम्युनिटी, ताकि हमारे जो और डिजाइनर्स हैं, जो कम्युनिटी है हमारी, वो ग्रो करें,
जब ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली क्या पाकिस्तान का फायदा है, पाकिस्तान ग्रो करेगा, पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते हैं तो डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में, उससे क्या होगा कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हो, आपको तो पैसे मिल ही रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन अल्टीमेटली जो गोल है वो क्या है कि वही हम अपने जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे, हमारी जो डिजाइनर की जो कम्युनिटी है उसको ग्रो करें, और एट द एंड अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क की सतह पे देखें तो हमारा पाकिस्तान जो है वो इस इंडस्ट्री में, आईटी की इंडस्ट्री में, मैं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा ग्रो करे। सो इसके लिए अगर हमें मल्टीपल सेशंस वीकली करने पड़ते हैं, मंथली करने पड़ते हैं, तो सर मैं अवेलेबल हूँ, यू जस्ट थैंक यू कॉल सर। मी कि सर ये नेक्स्ट सेशन हमने करना है, इस टॉपिक पे करना है, इंशाल्लाह वी विल डू दैट। तो ताकि लोग जो न्यू व्यू आना चाहते हैं इसमें, वो ग्राफिक डिजाइनर हैं, वो वेब डिजाइनर हैं, या कुछ भी नहीं उनको आता, वो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व जिनको हमें सीखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एंड देन यू विल बी एट द एंड, जो कंपाउंड इफेक्ट होता है किसी भी चीज का, वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके लिए लेके आता है। बिल्कुल सर, thank you so much for your time. It's really honor for us to have you here. Okay guys, Allah Hafiz, take care. ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अली भाई, अल्लाह हाफिज। Thank you so much. ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।